Praise the Lord, grace and peace be upon you. Welcome to Hosting the Ark, day 39. Today we continue the journey of the Ark and arrive at Ekron, one of the five major cities of the Philistine. After what happened in Ashdod and Gath, the Philistine moved the Ark to Ekron. They thought that changing the location would solve their problem. But they soon discovered a powerful truth. You cannot escape the presence and authority of the living God simply by changing locations. आप सभी पर अनुग्रह और शांति बनी रहे। होस्टिंग दी आर्क दिन 39 में आपका स्वागत है। आज हम वाचा के संदूक की यात्रा में एक्रोन पहुंचते हैं, जो फलिस्तियों के 5 प्रमुख नगरों में से एक था। अश्दोद और गत में जो कुछ हुआ, उसके बाद फलिस्तियों ने वाचा के संदूक को एक्रोन भेज दिया। उन्हें लगा कि स्थान बदलने से समस्या समाप्त हो जाएगी, लेकिन उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई को समझा। केवल स्थान बदलने से जीवित परमेश्वर की उपस्थिति और उसके अधिकार से बचा नहीं जा सकता। The Bible tells us that when the ark came to Ekron, the people cried out in fear. They had already heard about what happened in the other Philistine cities. Ekron was also associated with Baal Zebub, a Philistine deity. So we see a powerful contrast. On the one side was the ark representing the presence of the living God, and on the other side was the culture that looked to idols for spiritual answer. बाइबल बताती है कि जब वाचा का संदूक एक्रोन पहुंचा, तब वहां के लोग भय से चिल्लाने लगे। वे पहले ही दूसरे फलिस्ती नगरों में हुई घटनाओं के बारे में सुन चुके थे। एक्रोन का संबंध बाल जबूब नामक फलिस्ती देवता से भी था, इसलिए यहाँ हमें एक बहुत शक्तिशाली विरोधाभास दिखाई देता है। एक और वाचा का संदूक था, जो जीवित परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता था, और दूसरी ओर ऐसी संस्कृति थी जो आत्मिक उत्तरों के लिए मूर्तियों की ओर देखती थी। God says in Isaiah 42, I am the Lord, that is my name, and my glory I will not give to any other. God does not compete with idols. He exposes their emptiness. So whenever God's presence enters an environment, it confronts everything that was taken his rightful place. परमेश्वर यशायाह 42:8 में कहता है, मैं यहोवा हूँ, मेरा यही नाम है, अपनी महिमा मैं दूसरों को ना दूंगा। परमेश्वर मूर्तियों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करता, वो उनकी खोखली वास्तविकता को प्रकट करता है। जब परमेश्वर की उपस्थिति किसी वातावरण में प्रवेश करती है, तब वो उन सभी बातों का सामना करती है जिन्होंने परमेश्वर का सही स्थान ले लिया है। The Ekron is not only a geographical location today, it can also speak prophetically to areas of our own lives. There may be areas within us where we have allowed fear, pride, money success, people's opinion, control of self-reliance to become more important than God. Hosting the ark means saying, Lord, enter every area of my life. And this is the difference between religion and relationship. एक्रोन केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं है, ये हमारे अपने जीवन के कुछ क्षेत्रों की ओर भी संकेत कर सकता है। हमारे भीतर ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जहां हमने भय, घमंड, धन, सफलता, लोगों की राय, नियंत्रण या आत्मनिर्भरता को परमेश्वर से अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। वाचा के संदूक की मेजबानी का अर्थ है कहना, हे प्रभु, मेरे जीवन के हर क्षेत्र में प्रवेश कर। यही धार्मिकता और जीवित संबंध के बीच का अंतर है। The people of Ekron wanted the ark removed, but the new covenant gives us a completely different invitation. Through Jesus Christ, we are invited to draw near to God. Hebrews 10:22 says, let us draw near with a true heart in full assurance of faith. We don't have to run away from the presence of God. We can run towards his presence. एक्रोन के लोग वाचा के संदूक को अपने से दूर करना चाहते थे, लेकिन नया वाचा हमें एक बिल्कुल अलग निमंत्रण देता है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें परमेश्वर के निकट आने का अवसर मिला है। इब्रानियों 10:22 कहता है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ निकट आए। हमें परमेश्वर की उपस्थिति से भागने की आवश्यकता नहीं है, हम उसकी उपस्थिति की ओर दौड़ सकते हैं। The journey of the ark ultimately points us to Jesus Christ. Jesus is not merely a symbol of God's presence. He is Emmanuel, God with us. Through Christ,
God brings us into relationship with Himself. Every false source of security loses its power when Jesus becomes the center of our lives. वाचा के संदूक की यात्रा अंततः हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर संकेत करती है। यीशु केवल परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक नहीं है, वो इमैनुअल, परमेश्वर हमारे साथ है। मसीह के द्वारा परमेश्वर हमें अपने साथ संबंध में लाता है। जब यीशु हमारे बीच का जीवन का केंद्र बन जाता है, तब सुरक्षा के हर छोटे सोते की शक्ति समाप्त होने लगती है। The church is called to carry God's presence into places where His name is not honored. We are not called to hide from our culture. We are called to carry Christ into our culture. Our homes, workplaces, schools, communities and cities should encounter the character of Jesus through our lives. कलीसिया को परमेश्वर की उपस्थिति उन स्थानों में लेकर जाने के लिए बुलाया गया है जहां उसके नाम का सम्मान नहीं किया जाता। हमें अपनी संस्कृति से छिपने के लिए नहीं बुलाया गया, हमें यह मसीह को संस्कृति के बीच लेकर जाने के लिए बुलाया गया है। हमारे घर, कार्यस्थल, विद्यालय, समुदाय और नगर हमारे जीवन के द्वारा यीशु के चरित्र को देखते हैं। The journey from Ashdod to Gath and now to Ekron teaches us that changing the location does not change God's authority. The Philistines moved the ark from one city to another, but wherever it went, God's sovereignty was revealed. Today, wherever a believer carries Christ, the character and the presence of Christ should be revealed. अश्दोद से गत और अब एक्रोन तक की यात्रा में सिखाती है कि स्थान बदलने से परमेश्वर का अधिकार नहीं बदलता। फलिस्तियों ने वाचा के संदूक को एक नगर से दूसरे नगर तक पहुंचाया, लेकिन जहां भी वो गया वहां परमेश्वर की सार्वभौमिक प्रभुता प्रकट हुई। आज जहां भी कोई विश्वासी मसीह को लेकर जाता है, वहां उसके जीवन के द्वारा मसीह की उपस्थिति और चरित्र प्रकट होना चाहिए। So today let us make this declaration in our hearts that Lord, every area of my life belongs to you. My thoughts, my family, my relationships, my work, calling and my future belongs to you. And we are not called merely to visit God's presence, we are called to carry His presence. इसलिए आज हम अपने हृदय में ये घोषणा करें कि हे प्रभु, मेरे जीवन का हर क्षेत्र आपका है। मेरे विचार, मेरा परिवार, मेरे संबंध, मेरा कार्य, मेरी बुलाहट, मेरा भविष्य, सब कुछ आपका है। हमें केवल परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए नहीं बुलाया गया है, हमें उसकी उपस्थिति को लेकर चलने के लिए बुलाया गया है। Thank you for joining us today for hosting the Ark Day 39. May the presence of Jesus transform every area of our life, and may your home become a faithful carrier of His presence wherever He sends you. होस्टिंग द आर्क दिन 39 में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु की उपस्थिति आपके जीवन के हर क्षेत्र पर हो, वो आपको भेजे, वहां आप उसकी उपस्थिति के विश्वासियों की वाहक बने। आपका अनुग्रह और आपको शांति मिलती रहे।